ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕਾਲਤ ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਚਿਬਕੱਢ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 1984 ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਰ ਗਏ। ਫਿਰ 2017 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਦਾਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 1984 ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਉਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ कर सकते हो। उनको मुबारक ही दे सकता हूँ। जो मैं तो मेरे तो साथी पुराने तो रहे हैं, लेकिन मैं पार्लियामेंट में था, वो विधानसभा में थे। उन्होंने एलओपी से भी इस्तीफा दे दिया था, दाखा विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया था। तो कई बार मतलब अगर चुना हुआ कोई बंदा, लोगों ने चुना, वो बंदा बीच में छोड़ जाए तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता। मैंने तो ऐसा बंदा दोबारा जीता देखा नहीं। बाकी फूलका साहब को गुड लक। पालम के एरिया में अपने नेबर को बचाते हुए उसको मार दिया, क्योंकि सज्जन कुमार ने कहा था जो हिंदू सिखों को पनाह देता उसको मार दो। जहांगीरपुरी में हरी सिंह और उसका भाई गंगाधर,
उनको पीट पीट के हरि सिंह को मार दिया, उसको आधा मरा करके छोड़ गए। इसीलिए तो ये हालत थी। और ये वाजपेयी जी की जो बात बताई, वाजपेयी जी के घर के सामने टैक्सी स्टैंड को आग लगाई, वो बाहर आके खुद गइयों को उसको पकाया उन्होंने। यह तक ये जो हालत थी तब उस टाइम की। और ये 17 नवंबर 1984 को वाजपेयी जी ने एक लिस्ट रिलीज की कि 2700 सिखों को दिल्ली में मारा है। ये लिस्ट मदनलाल खुराना जी ने तैयार की थी। उससे पहले 3 दिन पहले क्या हुआ था, 14 नवंबर को उस टाइम के जो कांग्रेस के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि सारे इंडिया में 650 सिख मरे हैं। तो जब इन्होंने 2700 सिखों की लिस्ट रिलीज की, कांग्रेस ने कहा वाजपेयी एंटी नेशनल है, और उन्होंने कहा ये टेररिस्ट का साथ दे रहा है। और वाजपेयी जी के पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन सर पे है, आप इलेक्शन की सोचो। वो कहते मुझे इलेक्शन की परवाह नहीं, मुझे देश की परवाह, मैं देश की सोचना है, मैंने देश को बचाना है। इलेक्शन तो हर 5 साल बाद आएंगे। और ये सभी ये पूरे का पूरा नानावती कमीशन का रिकॉर्ड में है, ये उनकी ये पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट। और ये खुराना जी जब जैसे बताया, खुराना जी इतने कमिटेड थे। वैसे तो सारे अब सभी लीडर्स ने, जेटली जी ने भी बहुत हमारा साथ दिया, सुषमा जी ने भी साथ दिया, विजय कुमार मल्होत्रा, सब ने। खुराना जी तो इतने कमिटेड थे इस इशू के, उन्होंने मुख्यमंत्री बनते सार मुझे अपना एडवाइजर लगाया, और तब 1995 में HKL भगत को जेल पहुंचाया। वहां ये था। और थ्रू आउट ये बीजेपी ने इस इशू पे थ्रू आउट साथ दिया, क्योंकि दिल्ली की बीजेपी, मैं आपको ये बताऊं, बीजेपी पार्टी, वैसे तो मेरा दिल्ली में इनके साथ था, बीजेपी पार्टी इस इशू को ऐसे लड़ी, उनका अपना इशू है इस तरह से। अभी तक रविशंकर प्रसाद जब भी सुप्रीम कोर्ट में मुझे मिलते, शुरू से कहते हैं दूर से हमारा शेर आ गया, क्योंकि इन्होंने ऐसे लड़ाई लड़ी जैसे उनका अपना इशू है, और मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं उनकी हेल्प कर रहा हूं। इस तरह की अप्रोच थी इनकी थ्रू आउट। जब बीजेपी ने इतना किया तो मैंने भी पार्टी के लिए अपनी जितना कर सकता था उतना दिया। मैंने पार्टी की लीगल टीम को मैं इनको हेड करता था, बिना कोई पोस्ट लिए, बिना औहदा लिए। 2003 में जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉमिनेशन के साथ एफिडेविट फिल करने हैं, तब मैं इलेक्शन कमीशन का सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल था। खुराना जी ने मुझे कहा, खुराना जी पार्टी प्रेसिडेंट थे, कि आपने हमारी टीम को गाइड करना है। मैंने इलेक्शन कमीशन से रिजाइन किया, और 2003 से लेके 2013 तक दिल्ली में जितने इलेक्शन हुए, चाहे लोकसभा हो, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो म्युनिसिपल इलेक्शन हो, तो इनकी जो टीम थी, जो लीगल टीम, वो सबको मैं हेड करता था। मैं सरसा जी को बता रहा था, सरसा जी ने पहला इलेक्शन लड़ा तो इनका नॉमिनेशन पेपर भी फाइनल मुझसे ही होके गया था। और ये अनफॉर्चुनेटली ये एक गलती हुई 2014 में। सोचा था कि ये पार्टी आई है देश को बदलने के लिए। कांग्रेस की इतनी करप्शन थी उस टाइम जब अन्ना आंदोलन चला, तो उनके साथ जुड़े, उनके साथ लगे। और मगर अंदर जाने के बाद, थोड़ी देर के बाद पता चला कि जहां तो हाथी के दांत खाने को कुछ और दिखाने को कुछ, ये हाल है। 2017 में जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन बना, तो जैसे चुग साहब ने कहा है कि मेरे पास बार काउंसिल ने कहा कि मिनिस्ट्री का ओहदा है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मैंने एक केस करने की परमिशन मांगी, वो कहते रूल अलाउ नहीं करते। तो मेरे पास यही था, जहां सज्जन कुमार का केस, सज्जन कुमार का केस फाइनल हियरिंग पे आ गया था हाई कोर्ट में। तो मेरे पास जा था, जहां मैं केस छोड़ूं, जहां मैं उधर मंत्री का उधर और वो छोड़ूं। तो क्योंकि वहां ये केस तो मेरे अलावा किसी और ने करना नहीं था, तो मैंने अपनी ड्यूटी समझ के कि शुरू से जो मुझे उस अकाल पुरख ने, परमात्मा ने मुझे ये मौका दिया ये करने का, तो मैंने ना कि सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन छोड़ा, पॉलिटिक्स भी छोड़ के आके पूरा जोर लगा के जहां पे ये केस किए। और उस केस के रिजल्ट हुआ, सज्जन कुमार 8 साल हो गए जेल में है, लगातार जेल में है। और मैंने तो तब उस वक्त पॉलिटिक्स छोड़ के इसी काम के लिए लगे हुए थे। मगर आज जो पंजाब का हाल है, वो देख के ना दुख होता है, दुख होता है।
और अपने आप को गिल्टी फील करते हैं कि पंजाब में इतना बुरा हाल है, हम साइड पे बैठे हैं। लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया। ये हालत अब ये पंजाब में, अब देखो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ले लो, गैंगस्टरवाद ले लो। मेरा ख्याल है कोई ऐसा अच्छा बिजनेसमैन या कोई अच्छा लैंडलॉर्ड नहीं है जिसको फिरौती की कॉल ना ही हो। करप्शन जहां तक हर दफ्तर में ये इनके केजरीवाल का आदमी बैठा है कलेक्शन के लिए, इतनी ज्यादा करप्शन हो गई है। ड्रग्स का बुरा हाल, और सबसे जो बड़ा क्राइसिस पंजाब में है वो फार्मिंग का क्राइसिस है। जितनी रिपोर्ट अब तक आई है सबने कहा है 2039 में पंजाब का ग्राउंड वाटर टॉक्सिक हो जाएगा, आप यूज नहीं कर सकोगे, निकाल नहीं सकोगे। और ये जमीन अब क्या 13-14 साल लगे, जमीन पंजाब की बंजर होने वाली है। और मैं पिछले कई सालों से इसके लिए काम कर रहा हूं पंजाब में, मगर अनफॉर्चुनेटली पंजाब सरकार को बिल्कुल परवाह नहीं है, बिल्कुल परवाह नहीं है इस चीज की। और आज मैं जो सोचता हूं, मेरे सभी दोस्तों ने, पंजाब में भी मेरे दोस्तों ने, यहां भी, उन्होंने सबने कहा कि इस सिचुएशन से अगर पंजाब को वापस ला सकती है वो सिर्फ बीजेपी ला सकती है।